Mr. Pranshu Jangid. Good evening, sir. Very good evening, Pranshu. Yes, sir. Hearty congratulations on securing All India Rank 8 in Civil Engineering in GATE 2021. It is a very Thank you, sir. proud moment for all of us. Thank you, sir. Okay. Any rank in the top 10 must be a very good rank. It must have given you a great feeling. So, what was your feeling after hearing the rank? What was your feeling after hearing this rank? Yes, sir. I was expecting that I will get a good rank, but under 10 is a really good feeling for me, sir. Sir, Okay, it's very always good. a dream to get under 10 rank in any of the exams, so it was a wonderful feeling. Okay, very good, Pranshu. What was Yes. your parents' reaction? Sir, my parents were very happy, and sir, it was a Yes, very good very moment. good. It's a very great feeling. Uh, Pranshu, tell us something about your educational background, your native place, right? Yes, With your college and all. सर मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। Okay, मेरा जो स्कूलिंग है वो अलवर में ही हुआ है, सिल्वर ओक स्कूल में। okay. एंड सर मैंने ग्रेजुएशन आईआईटी गुवाहाटी से किया है एंड IIT 2000। गुवाहाटी से किया था आपका यस सर। ग्रेजुएशन। यस सर, कब 2019 किए में थे? पास। कब किए थे प्रांशु? In which year you have done your graduation? यस सर, मैं 2019 पास आउट हूँ। Very recently, 2019 passed out. Okay. यस सर। हाँ, बाद में? सर बाद में सर मैंने 2018 समर से ही ईएससी एंड गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एंड सर मेरा एम भी वही था, इसलिए सो आई कंटिन्यूड प्रिपरेशन। Okay, Pranshu, which program that you have taken from ACE Engineering Academy? Which coaching program you have taken? सर 2018 में समर्स 2018 समर्स में क्रैश कोर्स होता है आई दिल्ली में। सर Acha, मैंने acha. यस So सर। you have taken a शॉर्ट टर्म बेस। summer यस सर। crash course from ACE Engineering Academy from Delhi branch. यस सर। Yeah, very great, Pranshu. Pranshu, ये समर क्रैश बैच में क्लासरूम्स क्लासेस का शेड्यूल थोड़ा टाइट रहेगा, बट यस सर। व्हाट वाज योर फीलिंग बिकॉज यू यूज्ड टू हैव क्लासेस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यस सर। so how you used to cope up the classes and any revision that you used to do during that time? सर मैंने लाइफ में सर इतनी लंबी क्लासेस पहले कभी नहीं ली थी। यस सर। तो बाकी जो वहाँ पे सपोर्ट था मेरे सर, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स थे वो भी साथ आए थे। तो हम अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक क्लास करते थे, फिर रूम पे जाके थोड़ा रिलैक्स करते थे, थोड़ा गेम खेलते थे बस सर, इसलिए वो टाइम अच्छे से पास हो गया था सर वहाँ पे। okay. See, hard work will never go waste, always it pays dividend. यस सर। Oh, that's what proved in our case also. यस सर। Right, right, Pranshu. Very good. You are the summer crash batch student of our branch in Delhi Center, right? यस सर। Pranshu, in GATE there are many subjects in our civil engineering. यस सर। You tell us which subjects did you focus more? सर मैंने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली देखा है सर, कभी भी कि कोई एक इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कोई नहीं सर, छोटा से भी छोटा है, सब बराबर थे, Acha. सब बराबर है एकदम से। Okay. Did you leave any syllabus or did you focus the entire 100% syllabus of your GATE? सर सर एंटायर सिलेबस। Entire syllabus. Very यस। good. Very good. Very good. Our Pranshu, in यस। the GATE examination, did you follow any particular sequence of answering, like first answering 2 marks question or 1 mark? Which one that you attempted in the GATE paper? सर जैसे कि मैं टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करता था, मैं मतलब इस क्वेश्चन नंबर 1 से 65 तक सीधा जाता था हमेशा। Acha. लाइक इस बार तो सर पेपर में क्वेश्चन सफल भी थे, 2 मार्क्स 7 मार्क्स रैंडम ऑर्डर में थे, तो सर मेरे को उसका पता बहुत बाद में लगा था कि 2 घंटे बाद कि ये तो रैंडम क्वेश्चन है, बट सर मैं सीधा ऑर्डर में जाता था हमेशा एंड जो Acha. जो क्वेश्चन मुझे पहली बार में हो जाते थे वो मैं कर लेता था। और किसी क्वेश्चन में सर क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाता है कि इसमें 2 मिनट लगने वाला है, 3 मिनट लगेगा, इसमें ये थोड़ा लैम इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा जाएगा, तो जिसमें मेरे को लगता था कि इसमें हाँ 5 मिनट से ज़्यादा चल जाएगा, उसको मैं मार्क को रिव्यू करके Hmm. एंड फिर आगे बढ़ जाता था एंड दोबारा मैंने फिर लास्ट के में आधा घंटा बफर में रखता था एंड में, फिर उन क्वेश्चन पे वापस जाता था। Okay. और एक बताइए मेरे को, this 3 hours time what you get in the GATE exam, was it sufficient for you or did you feel any short of the time? सर इस बार थोड़ा पेपर मेरे को लास्ट से कंपेरेटली थोड़ा सा इजी लगा था। हाँ सर, टाइम सफिशिएंट रहता है सर, Time ऐसे was नहीं। sufficient for you. Okay, very good. Pranshu,
tell what was your strategy in the what you call during the preparation. I mean to say, Yes, daily कितने hours पढ़ते थे आप पे, right? yes, How many subjects you used to prepare? Is it only one subject or two subjects? And how you used to do the revision work also, thoda in detail, because you have got a very good rank, right? sir. So many aspirants of GATE exam may be expecting to know about you. So can you tell us your study plans, यस सर। सर please? मैं कॉलेज से स्टार्ट करूँगा। जैसे वहाँ से कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब हम कॉलेज गए थे वापस, तो डेली का 4 टू 5 आवर्स मिलता था। अच्छा। तो सर जो कॉलेज का टाइम था उसमें मैंने मतलब जितना सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो, जो क्लास के नोट्स बने हुए हैं आपके वहाँ पे कोचिंग पे, वो दोबारा अच्छे से गो थ्रू करो। जितना आप रेंज कर सकते हो उतना रेंज कवर करो। फिर जो टेस्ट सीरीज आती है, एंड तो टेस्ट सीरीज एकदम रिलीजियसली दो। जैसे एग्जाम अपना 3 घंटे का होता है, तो 3 घंटे का जो 2 से 5 या फिर 9 से 12 उसी टाइम पे एग्जाम टेस्ट सीरीज भी दो। और जो जो चीज़ गलत हो रही है टेस्ट सीरीज में, उनको करेक्शन वर्क बना, एक करेक्शन नोटबुक में से मैं अलग से हमेशा बनाता था। जो भी मेरे गलत होते थे उनको मैं करेक्शन नोटबुक में लिखता था। एंड फिर उस टॉपिक को या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ फॉर्मूले को मैं बुक में रेफर करता था या फिर मटेरियल में रेफर करता था। एंड उसके क्या यूनिट्स हैं, उस फॉर्मूले के सर पेरी पेरी में भी जो भी चीज़ें हो सकती है, जिस तरह से क्वेश्चन मॉडिफाई हो सकता है, वो सब भी कंसिडर करके कि आगे वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो मेरा। तो सर अच्छा। उस चीज़ पे मैंने फोकस किया था। एंड सर जो गेट एग्जाम से पहले मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, सर एक्चुअली मैं इस बार ईएससी मेन ईएससी भी दिया था मैंने। तो ईएससी जो मैंने मेंस का पढ़ा था, तो उससे मेरा एक रिवीजन दोबारा हो गया था गेट का। मतलब उसमें गेट भी ईएससी मेंस एंड गेट, सर दोनों में काफ़ी ओवरलैप रहता है। या तो या यस सर। there are many subjects which are common between these two examinations. और यस एक सर। बताइए मेरे को, यस daily how many subjects that you used to study? Is it only one subject or more than one subject? सर 2 to 3 सब्जेक्ट सर। ऐसा होता है कि हम एक पढ़ते हैं, फिर वो 15-20 दिन बाद सर वो गायब होने लग जाता है पीछे वाला सब्जेक्ट। तो हाँ, right. दिस एडवाइस एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट्स मिनिमम, दो तो करने ही चाहिए एक बार में कैरी। Yeah, और that's what एक I used to tell you students in the classes also. Just better to have some combination of subjects instead of studying only one subject, isn't it? यस सर। एंड सर जो स्टडी टाइम है मैं जनरली 9 आवर्स का रखता था, 3 3 आवर्स के 3 स्लॉट्स रखता था। तो Right. स्टूडेंट्स ऐसा भी कर सकते हैं, 3 आवर्स में एक सब्जेक्ट, 3 आवर्स में एक सब्जेक्ट और 3 आवर्स में रिवीजन। Yes, depending upon their convenience and यस other aspects. यस सर। Mhm. Tell us something about your revision plan. Revision. So at what frequency you used to do the revision? कैसे करते थे वो? लॉन्ग टर्म रिवीजन, शॉर्ट टर्म रिवीजन, ऐसा ऐसा था ना? यस सर। आप कैसे सर कर रहे थे रिवीजन? रिवीजन हाउ यूज्ड टू डू द रिवीजन वर्क? सर रिवीजन वर्क करने के लिए सबसे पहले मैं किसी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था। फिर उसमें देखता था कि मेरे को कुछ कुछ कहाँ कहाँ पे गलती आ रही है सर, क्योंकि जब जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, हम पूरा बुक सब्जेक्ट उठा के पूरा एकदम नहीं पढ़ सकते। या तो शॉर्ट नोट्स बनाए, तो मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। अच्छा, या you have सर prepared short notes also. यस सर। सर शॉर्ट Did you नोट्स। prepare for each subject? यस सर, ईच सब्जेक्ट। Okay, approximately how many pages that you have prepared a short note for each subject? सर मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो थोड़े से डिटेल थे। लाइक अगर कोई सब्जेक्ट 300 पेजेस का है, 200 पेजेस का है, तो मैंने उसको 30 पेजेस में कन्फाइन किया था कि मैं। Each subject. यस सर। Each subject around 30 pages. यस So यस what you used to write in that short notes? सर शॉर्ट नोट्स में सर जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे इंक्लूड होते थे। फॉर्मूले Okay. के एक एक टर्म का क्या थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट, उनकी यूनिट्स क्या है, क्योंकि सर एग्जाम में कई बार होता है हमें फॉर्मूला तो याद आ जाता है, पर ये पता लगता है कि इसमें एमएम में डालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूले का Yeah, पता लगता especially है एमएम। empirical formula में होता है वो problem, यस, right? तो उनका प्रॉपर यूनिट्स इंडिकेट किया था उस सब में। और सर जो थ्योरेटिक कुछ कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे एनवायरनमेंट में है, उनके थोड़े बहुत डायग्राम बना दिए यूनिट्स के, जिससे मेरे को Right. रिकॉल करने में बहुत आसानी है। Yes, yes, right. So that is how you have prepared your short notes also. यस सर। So in your revision work, you used to go to the short notes mainly. यस सर, जैसे अगर मेरे को एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है तो मैं सबसे पहले उसका टेस्ट दूंगा। फिर टेस्ट से मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि हाँ ये चीज़ दोबारा पढ़नी चाहिए सर। उसी दिन मैं उसके शॉर्ट नोट्स भी एक बार देख लूंगा पूरे। तो सर इस तरह से वो सब्जेक्ट मेरा पूरा रिवाइज हो जाता था। Okay, very good, Pranshu, very good. Tell us, what was the role of AC Engineering Academy in your success? सर गेट में सर मैं एक बताना चाहूँगा कि सर एस एकेडमी में एक सोमू सर थे एंड वेंकट सर थे। उन्होंने जो आरसीसी और मैथ्स पढ़ाया था सर, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहा था सर। जो उनका मैथ्स का जो मटेरियल था सर, मैंने एंड तक गेट में भी वही रिवाइज किया था सर। बहुत तो ये जो एट्थ के क्लास नोट्स थे सर, उससे रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हुई थी।
थी, मतलब Okay. पेपर एंड शॉर्ट नोट्स बनाने में भी। Yes, sir. Right. What about ACE income test series? Yes, sir, मैंने एस का 19 में गेट का टेस्ट सीरीज लिया था, एंड मैंने 19 एंड 20 में ईएससी मेंस का टेस्ट सीरीज भी लिया था। तो Right. सर उससे भी सर काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी सर इस चीज़ की। Okay. Now, in the test series of ACE Academy, where you used to stand rank wise? किधर थे आप? सर मैं मोस्टली अंडर 20 ही रहता था सर, Okay. बट मैंने जैसे 2020 में भी अटेम्प्ट दिया था सर, बट उसमें फाइनल जो मैंने एग्जाम था जो 3 आवर्स था, उसमें मेरे से थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। बट इस Okay. साल सर वो मैंने सर सही कर ली थी। अच्छा अच्छा, very good, Pranshu. यस सर। Uh, now, what are your suggestions and tips for the future aspirants of GATE exam? यस सर। सर जैसे इस बार का हम शेड्यूल देखेंगे तो जैसे ईएससी प्रीलिम्स पहले है, देन ईएससी मेंस है, देन गेट है। जिन बच्चों का खाली गेट पे फोकस है वो तो सर गेट का पहले पूरा सिलेबस कवर करे 5-6 मंथ्स में जितना हो सकता है, जैसे क्लासरूम में करवाएंगे या फिर ऑनलाइन जैसे एज का है, तो पूरा एकदम सिलेबस कवर करे। और एग्जाम से एटलीस्ट 1.5 मंथ पहले अपना सिलेबस एकदम रेडी करके रखे, क्योंकि जो लास्ट के 1.5 मंथ है उसमें खाली रिविजन, ऐसा छोड़े कि खाली रिविजन ही हो, अच्छा क्योंकि रिविजन सर बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर और जो जो टेस्ट सीरीज है जैसे फुल लेंथ टेस्ट है, लास्ट का जनवरी जो मंथ होता है वो फुल लेंथ टेस्ट और अपने एनालिसिस करेक्शन वर्क के लिए रिजर्व रखे सर। और जो ईएससी और गेट दोनों को टारगेट कर रहे हैं वो ईएससी पे फुल फोकस रखे, देन ईएससी मेंस पे, क्योंकि जब ईएससी प्रीलिम्स और मेंस का जो कंबाइंड जो इफेक्ट आएगा उससे उसका गेट का फुल रिवीजन अपने आप हो चुका होगा, एंड देन वो गेट को टारगेट कर सकते हैं। so uh, can you say that this is a short-term batch coaching that you have availed from our Delhi center, right? And यस similarly for the, I mean, third year students or final year students, those who cannot come for a regular long-term coaching. So for them, is it advisable to take the short-term batch coaching, just like what you have taken? यस सर। सर इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल। सर इससे एक स्टार्ट मिल जाता है, जैसे हम सर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बट जब जो एक कोचिंग से पता लग जाता है कि पूरा सिलेबस क्या है, क्योंकि हम सिलेबस टॉपिक्स पढ़ के तो इतना नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन जब वो क्लासरूम में पढ़ा देते हैं शॉर्ट टर्म में, सर क्लासेस थोड़ी लंबी जरूर होती है पर उसमें अपन को पूरा सिलेबस पता लग जाता है कि यही आने वाला है। और एक माइंड में जब फिर उसके बाद खुद से पढ़ते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म बैच जिनको अगर थर्ड ईयर से करना है सर, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल लगेगा कि इनिशियल स्टार्ट दे देंगे। No, यस I सर, I मेरे mean to केस say, में तो can you काफ़ी say, हेल्पफुल था। no, for a serious aspirant of GATE exam, so from which year should he start the preparation? Is it the second year onwards or third year onwards? What is your advice on this? सर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स सर सफिशिएंट है सर। Okay, थर्ड ईयर ओनली। third यस year सर। onwards, यस right? सर Good. सेकेंड ईयर तक वो और कुछ भी एक्सप्लोर, अगर किसी उनको फील्ड से वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट जो एक सीरियस कैंडिडेट है वो थर्ड ईयर के बाद अपना मन बना लेगा कि मुझे गेट में ही जाना है कि एसी में जाना है। तो सर थर्ड ईयर इज द बेस्ट टाइम टू चूज दिस पाथ। Right, very good. How many marks you have got totally? सर आई हैव गॉट 86.55 मार्क्स। Acha, right. Did you do any mistake in the GATE exam? यस सर, आई डिड 3-4 वेरी सिली मिस्टेक्स दिस ईयर Arey, आल्सो। arey. Now, Pranshu, had you not done those mistakes, you would have been in the first ranker, right? यस सर, ऑलमोस्ट सर हो सकता था। Nearly, right? यस सर। Anyway, it happens for all the students. Nothing to regret. Even eighth rank also equally good, right? Top 10 is always great, right? Okay, यस सर। very good, Pranshu. Now, what are you planning to do with this rank? Are you going to join any PSU or MTech? सर आई विल जॉइन पीएसयू सर। Okay, you're planning to join यस PSU. सर। यस सर। Mm. What are your future plans? Any further idea of going for engineering services or civil services like that? सर आई हैव आल्सो गिवन द इंटरव्यू फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज दिस ईयर। तो Okay, सर very good. अभी लॉन्ग टर्म प्लान तो नहीं, बट सर ईएससी एंड जो गेट में से मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा सर, आई विल गो फॉर दैट। Right, very good, Pranshu. And यस once again, do you want to say anything to the future aspirants of GATE examination regarding their preparation? Any other advice? यस सर, अगर कोई कॉलेज से स्टार्ट करना चाहता है तो प्लीज़ थर्ड ईयर में जो एज का शॉर्ट टर्म है वो ज्वाइन कर सकता है। एंड सर बाकी जो टेस्ट सीरीज सबको पूरी देनी चाहिए, जितने भी टेस्ट दिए हैं सारे सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट वाइज एंड फुल प्लान टेस्ट सीरीज हमेशा पूरी देनी चाहिए। एंड Right, right. सर एक Or, चीज़ मैंने यस please. यस सर। सर इस बार मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ हो गई थी, जो गेट के 2017, 18, 19 और 2020 के पेपर्स हैं
मैंने सर वो पेपर्स ही पूरे डाउनलोड करे थे, फर्स्ट और सेकंड सेट, एंड जो एग्जाम से एक वीक पहले मैंने वो पेपर टू से फाइव, 3 से 6 वाला स्लॉट था, तो सर मैंने वो एक्चुअल पेपर ही दिए थे और फिर मैंने देखा था कि मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। सर उसमें अच्छे नंबर आए थे, तो उससे एक बहुत अच्छा बूस्ट मिला था कि हाँ, जब मैंने एक्चुअल पेपर्स में कर चुका हूँ तो इस बार भी मेरा अच्छा ही रहेगा। तो सर जो एग्जाम के दिन मेरा प्रेशर था, जो मेरे पर लास्ट ईयर डेवलप हो गया था, वो इस साल नहीं हुआ था सर। अच्छा, अच्छा. यस। One last question, Mr. Pranshu. यस See, सर। you used to prepare for GATE examination as well as engineering service examination, right? यस। So long, hectic preparation and all. यस। Have you ever come across any pressure, demotivation, something as such? यस सर, कभी कभार टेस्ट सीरीज में सर कम नंबर आ जाते थे तो सर लगता था कि मतलब, Okay. सर एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे मार्क्स मतलब 2-3 टेस्ट में सर कंटिन्यूस नीचे नीचे जा रहे थे। Okay. बट सर फिर मतलब उस चीज़ पे रुकना नहीं चाहिए, जो तुम्हारे जो गलती हो रही चीज़ें उनको सुधारो। फिर ये सोचना चाहिए कि अभी मेरी गलती हो चुकी है, अब आगे मैं इसको कभी भी एग्जाम में, एटलीस्ट एग्जाम में मैं कभी इसको रिपीट नहीं करूंगा। तो कभी Yes. भी अगर सर ऐसा डाउन आता है तो उन चीज़ों से सीखना चाहिए एंड उसको फिर बाद में रिपीट नहीं करें सर, इस तरह से उसको। Right. That is a good attitude. Just because you got some low marks in the one or two test, right, mock test, you should not get discouraged because there are so many यस सर। mock tests, right? The real GATE exam is something else. You यस should सर। not get demotivated, right? You should have a strong desire. You have to go ahead. Very यस good, सर। Pranshu. Really, I'm very proud of you, right? थैंक यू। So we wish you all the best in all your future endeavors. God bless you, Pranshu. God bless you once again. Hearty congratulations to you. थैंक यू सो मच।